Namaskar. I, Devansh Singh, CEO IES University, would like to take this opportunity to express my views on the topic of today's webinar. As is evident, COVID-19 will fundamentally change the way humanity works and socializes for years to come. The current crisis will be a catalyst to the unprecedented changes in every industry. Every industry will be forced to reform and restructure in order to transform into new realities that will emerge in the post-COVID-19 scenario. As you know, many industries have suffered badly in the COVID-19 crisis, like hospitality, tourism, transportation, etc. Likewise, there will be the great deal of changes that will happen. In the wake of COVID-19, in the education sector as well, will dramatically be affected post-COVID-19, as it is evidently clear from the onset of online education. Education will embrace the digital world in the fastest and largest scale possible. Education institutions will come of age and traditional teaching standards will become a thing of the past, paving way for newer technology-driven teaching methods. The impact of this change will be seen in all sections of the education sector, right from preschool to higher education. The internet-based education will be a reality in the post-COVID-19 era, offering flexibility of learning to students and flexibility of teaching to teachers. The cost of education will also become cheaper and accessible to a larger section of a society. Now I wrap up by giving some of my out-of-box ideas to all who want to do well in terms of accepting the challenges and adapting to the new realities of the changed world around us post-COVID-19. Reinvent yourself by learning new skills, obtaining new accreditations and certifications. The keys to navigating the new post-COVID-19 world entail working hard to show you your value, preparing to reinvent yourself, taking on short-term learning, sessions that offer to enhance your experience, skills, and knowledge. This will stand you in a good stead to the face of challenges in the field of education after the crisis. And I'm sure as we move forward, there will be a lot of innovative views that will be discussed by our guest speakers of today's webinar. Thank you very much. Thank you, sir, for your enlightening words and sharing your vision. Now it's a pleasure and honor to present the profile of our first guest speaker of today's session, Shri B.R. Shankaranand sir. Shri B.R. Shankaranand sir is a social educational reformer associated with Bharatiya Shikshan Mandal since 2018 as All India Joint Organizing Secretary with Delhi as his headquarters. He is an engineer by profession with the specialization branch of electrical and electronics. He started his social journey as RSS Pracharak in Karnataka in 1988. He served as Prant Pracharak in Karnataka Uttar from 2013 to 2018. Welcome to IES, sir. Participants on Facebook page of IES University are requested to type their queries in the comment box concerned with the subject of the webinar, and we will bring them up in the question-answer round at the end of the session. Thank you all and welcome once again. Now over to Shri B.R. Shankaranand sir to commence his session, please. सभी को नमस्कार। आईएएस विश्वविद्यालय के इस मंच पर शिक्षा के संबंधित विषय रखने के लिए मुझे बहुत गर्व का महसूस। उपस्थित सभी विद्वानों को और फेसबुक के द्वारा इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं ऐसे सभी महानुभावों के चरणों में मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। Transformation in education in post-COVID scenario, opportunities and challenges, ये विषय है। इस विषय के बारे में चर्चा करते समय प्रारंभ में भारतीय शिक्षा के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। What is education इन भारतीय व्यू पॉइंट, इसको हमने पहले सोचना चाहिए। भारतीय शिक्षा को देखते समय दुनिया में मनुष्य को देखने की दृष्टि कैसे कैसे रही, ये पश्चिम और पूर्व की अलग अलग है। पश्चिम में मनुष्य को
man is an economical animal, man is a bundle of desires इत्यादि दृष्टि से मनुष्य को देखा। मनुष्य को सुख और भोग के अनुभूति से ही सुख प्राप्त करना है। मनुष्य का लक्ष्य है सुख को ही प्राप्त करना, वो ही इंद्रियों के द्वारा शरीर का सुख ही अंतिम लक्ष्य है। इस दृष्टि से देखा गया। मनुष्य यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का समुच्चय है, ऐसा सोच भारत में विकसित हुआ। मनुष्य में मन एक रहता है, इसको पश्चिम के विचारकों ने अभी अभी उन्होंने स्वीकार किया है। यह स्वीकार करने के बाद ही साइकोसोमैटिक डिसीजेस का अनुसंधान भी हुआ। मनुष्य यानी शरीर और बुद्धि, इतना ही मात्र वो सोचते थे। मन है, मन का परिणाम बुद्धि के ऊपर होता है, शरीर के ऊपर होता है, ये अभी वो सोच रहे हैं। हाल ही में 25, 30, 40 वर्ष में इसका सोच गहराई से हो रहा। भारतीय शिक्षा के बारे में जब हम सोचते हैं, मनुष्य को शिक्षित करना, मनुष्य का विकास करना, इसके बारे में सोचते समय भारतीय कल्पना ऐसी है, सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति की ओर ले जाती है वही शिक्षा है। मुक्ति की ओर जाना कैसे, इसके लिए भी बहुत सुंदर वर्णन है। तत् कर्म यन् न बंधाय सा विद्या या विमुक्त। मुक्ति की ओर जाने की एक सरल उपाय है, तत् कर्म यत् न बंधाय। जो कर्म हम करते हैं वो कर्म हमें बंधन में न डाले, ऐसा कर्म हमको करना चाहिए। इसके वजह से ही मनुष्य मुक्ति की ओर जा सकता है। एक सुंदर सरल उपाय है। शिक्षा का बुनियादी विचार भारत का यही है। इसको आधार लेते हुए मनुष्य का विकास करना, मनुष्य के विकास यानी वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष इसका अभी आध्यात्मिक रूप से न जाए, अभी व्यावहारिक रूप में मुक्ति का अर्थ क्या हो सकता है। मनुष्य सुख से रहना चाहता है, इसके लिए कला चाहिए। जीवन को जीने की कला मनुष्य सीखना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने की कला तब आती है जब मनुष्य छोड़ने को सीखता है। आर्ट ऑफ लिविंग, इसमें वो तब सक्षम होता है जब वो आर्ट ऑफ सेल्फ इज आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग यानी त्याग, त्यागना है, आवश्यकताओं को कम करना है, चाहों के ऊपर, अपनी चाहों के ऊपर नियंत्रण पाना है। यही सुख का लक्षण है। गौतम बुद्ध ने सुख के बारे में एक अच्छा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, सुख इज इक्वल टू सुख का साधन डिवाइडेड बाय सुख की लालसा। सुख की लालसा और सुख, ये दोनों विरोधी दिशा में बढ़ती है। सुख की लालसा यदि बढ़ती है, वैसे सुख कम हो जाता है। आप मनुष्य, मानव
ज्यादा सुख पाने का चाहता है तो सुख की लालसा को कम करते जाना चाहिए। शिक्षा में यदि नहीं आता है ये सभी बातें, तब मनुष्य विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को शिक्षा में एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस करना यानी क्या, इसका परिणाम क्या निकलना चाहिए? One should be physically strong by the education. Through the education, one student should become physically strong, mentally pure, sound, and patriotic. Spiritually, he should be creative, intellectually creative, spiritually rooted, and socially productive. ये 5 बातें नहीं आते हैं तो वो शिक्षा बेकार है। फिर से मैं दोहराता हूं, one should be physically strong, mentally pure, sound, and patriotic, intellectually creative, spiritually rooted, and socially productive. यानी इंटेलिजेंट, फिजिकल कोशंट, मेंटल कोशंट, इंटेलिजेंट कोशंट, सोशल कोशंट, ये 5 कोशंट को एड्रेस करना चाहिए शिक्षा में। ये 5 विकास होने के लिए शिक्षा में हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्या है, डिलीवरी कैसी है, और एक्टिविटी क्या है, ये सभी हम भारतीय शिक्षा यानी सीखना है, सिखाना नहीं है। इसीलिए अपने देश में भारतीय शिक्षण प्रविधि के विस्तार से वर्णन एक सुंदर श्लोक में किया गया है। शिक्षा की प्रविधि कैसे रहना चाहिए, मेथडोलॉजी यानी क्या। अभी जो टीचिंग चल रहा है, टीचिंग इज डोमिनेटिंग एवरीवेयर सिंस द एजेस। वी also used to learn amongst the students. शिक्षक भी विद्यार्थी छात्रों के साथ मिलकर सीखता है। सिखाना अपने देश में नहीं था, सीखना था। सिखाना अहंकार निर्माण करता है, सीखना विनम्रता निर्माण करती है। इसीलिए सीखना अपने देश में बहुत सालों से रहा है। शिक्षा का प्राण ही सीखना है। टीचर शुड नॉट टीच, he should also learn with the students, to help the students to learn, to make the students to learn, to inspire the students to learn, to motivate the students to learn. This is the role of teacher as a facilitator. इसीलिए वर्णन किया गया है अपने देश में, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यस्वमेधया पादम सह ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। ये शिक्षा की प्रविधि, मेथडोलॉजी कैसे रहना चाहिए, उसमें वर्णन है। एक छात्र शिक्षक के द्वारा 1/4 सीखता है। यानी शिक्षक यानी आचार्य, आचरति इति आचार्यः, पहले जो कुछ भी वो बोलता है उसको पहले आचरण में लाता है, इसीलिए वो आचार्य है। यानी जो शिक्षक है वो उनका कथनी और करनी दोनों एक रहना चाहिए, तब जाकर वो शिक्षक बनने के लिए योग्य बन जाता है। कथनी और करनी में अंतर है तो वो शिक्षक कैसे बन सकता है।
वो कैसे आदर्श बन सकता है? वो दूसरे मनुष्य का निर्माण दुनिया में अत्यंत पवित्र काम है, इसके तुलना में किसी और काम पवित्र नहीं है। इसीलिए शिक्षक का वृत्ति अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत पवित्र है, इसीलिए वो पूजनीय है और आदरणीय है। ऐसे शिक्षक कथनी और करनी में एक होना चाहिए। उसके ऐसे शिक्षक का मेथोडोलॉजी क्या हो सकता है? मेथोडोलॉजी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आगे छात्र अपने आप को सीखना चाहिए। ये 1/4 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का शिक्षक के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से वो सीखता है। और स्वमेधया, स्वाध्याय से 1/4 बाय पियर्स, मित्रों के द्वारा, सह ब्रह्मचारीभ्य, साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से 1/4, और अंत का 1/4 खुद अनुभव के आधार पर करते हुए एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा अनुभव के आधार पर सीखता है। इसीलिए कक्षा के माध्यम आउटडेटेड हो गया है। क्लासरूम टीचिंग हैज बिकम आउटडेटेड। नोबडी वांट्स टू सिट इन क्लासरूम्स because of the compulsion they used to sit in the classrooms, but they do not concentrate. इसके लिए विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। अभी हमको इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा की ओर लौटना पड़ेगा। कोविड-19 का संदेश है, जड़ों से जुड़ो। अपना जड़ों से जुड़ो यानी क्या है? मूल की ओर हमको लौटना पड़ेगा। शिक्षा में हमको भारतीयता की ओर आना चाहिए। इसका अर्थ है शिक्षा के भारतीय कल्पना जो है वहां हमको जाना चाहिए, उस मूल तक हमको लौटना चाहिए, यानी ये मेथोडोलॉजी में परिवर्तन लाना चाहिए। कंटेंट में परीक्षण और अंतरीक्षण, ये दोनों विद्यार्थियों का आकलन करने की दो पद्धतियां भारतीय कल्पना में बहुत श्रेष्ठ है। अंतरीक्षण और परीक्षण, ये दोनों को लागू करते हुए फिर से हम जड़ों की ओर हमको जाना चाहिए, शिक्षा की भारतीय कल्पना की ओर। इसीलिए एजुकेशन एक्टिविटीज शुड बी द टीचर सेंट्रिक और ओरिएंटेशन शुड बी लर्नर सेंट्रिक। Process, the methodology should be learning centric. ऐसे इन तीनों में ecosystem should be teacher centric, orientation should be learner centric, and process, the methodology, knowledge, to manifest the knowledge already within. This is the methodology. This should be learning centric. ऐसे हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। और भारतीय दृष्टि से विकास यानी उन्नति की ओर जाना है। इसका अर्थ है एक छात्र का श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा, धृति और धी, इन 6 चरणों में विकास होने की आवश्यकता है। श्रद्धा से मेधा, मेधा से प्रज्ञा, प्रज्ञा से प्रतिभा, प्रतिभा से धृति और धी। श्रद्धा यानी आचार्य और शास्त्र दोनों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए विषयों को ग्रहण करना। मेधा में ग्रहण किया हुआ विषयों को धारण करना, उसको समझना। प्रज्ञा यानी ग्रहण करके समझा हुआ विषय का चिंतन करना, विश्लेषण करना, अभिव्यक्त करना तर्क बुद्धि से।
प्रतिभा यानी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा। 9 प्रकार के जो अन्वेषण पद्धतियां हैं, इसको लेकर ये सभी समस्याओं का निवारण की रास्ता ढूंढ निकालना अनुसंधान के माध्यम से ये प्रतिभा है। और धृति ऐसे सात्विक, राजसिक और मानसिक जितने भी कठिनाइयां, चुनौतियां सामने आते हैं हमको हराने के लिए, उन सभी चुनौतियों को अपने ज्ञान के आधार पर और कुशलता के आधार पर उसको निवारण करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ना, ये धृति है। थी अंतिम लक्ष्य है वो अल्टीमेट नॉलेज ही हैज टू एक्वायर विथ ऑल दीज मेथडोलॉजीज। शिक्षा में इसको समावेश करना बहुत आवश्यक है। ऐसे हम यदि करते हैं तब हमको श्रेष्ठ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। प्रोडक्ट इस शब्द का उपयोग मैं गलती से किया, क्षमा चाहता हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य का ये बहुत पवित्र कार्य है। नर को नारायण बनाने का काम ही मैन मेकिंग है। अंतर्निहित ज्ञान को मन वचन कर्म के द्वारा प्रकट करना, टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी, द डीप, द यूनिक नॉलेज थ्रू हिज एक्टिविटीज, थ्रू हिज डीड्स, थ्रू हिज टॉक्स। यही शिक्षा है। आज हमें जो कोविड के इस संदर्भ में ऑनलाइन टीचिंग जो प्रमुख भूमिका निभा रही है, साथ हम नहीं आ सकते, इसीलिए ऑनलाइन टीचिंग ऐसा चल रहा है। भारतीय जो सनातन धर्म है कभी भी ऐसे नयापन को स्वीकारा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कभी नयापन को, नया तंत्रज्ञान को नकारा नहीं है। नॉलेज ट्रांसफर होता था। आकाश तत्व सूक्ष्म होने के कारण शब्द का महत्व बहुत था। शब्द के द्वारा ज्ञान का प्रसारण होता था। जब हुआ, नया तंत्रज्ञान आ गया, यानी अक्षरों की उत्पत्ति, लिपि प्रारंभ हुए, तब ये शब्द अक्षरों में परिवर्तित हुआ, आकारों में परिवर्तित हुआ। अक्षर को हमने स्वीकार किया, इसके कारण लिखी गई पुस्तक, इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आए, पुस्तक छपी गई। इस प्रिंटिंग प्रेस को भी अपने धर्म समाज स्वीकार किया। इसके कारण इट वाज ए ब्यूटीफुल टूल फॉर द फ्रीडम फाइटिंग, फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसे पुस्तक छापे गए प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। इसके कारण स्वातंत्र्य आंदोलन को, स्वाधीनता आंदोलन में हम सफलतापूर्वक मूवी आए, उसको भी हमने धिक्कारा नहीं है, उसको भी स्वीकार दिया। अभी आप देखते हैं रामायण धारावाही 33 वर्ष के बाद भी कितना प्रसिद्ध हुआ। 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसको देखें, नई पीढ़ी देखा। रामायण की कथा जानते हुए भी हर प्रसंग के संदर्भ में आंखों में आंसू, इतना संवेदनशील हुआ। टेक्नोलॉजी के दृष्टि से उतना वो आधुनिक नहीं होते हुए भी लोग उससे समरस हो गए। ऐसे हम लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से
जो नयापन आता है, नया तंत्र ज्ञान आता है, उसको हमने स्वीकारा है और उस तंत्र ज्ञान को अपनी विचारधारा, अपनी जो मूल ध्येय है, मूल लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए इस नया तंत्र ज्ञान का सफल प्रयोग हमने किया है। इसीलिए अभी जो ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग है, उसको यहां बैठे हुए इसको देख रहे हैं ऐसे सभी विद्वानों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस डिजिटल टीचिंग को अपनी बुद्धिमत्ता से डिजिटल लर्निंग के रूप में परिवर्तित करना। यहाँ चुनौतियां भी बहुत है और अवसर भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज ये है कि अपने देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी ही जितनी चाहिए उतनी नहीं है। नीति आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार 32% प्रदेशों में कनेक्टिविटी है। आप कैसे डिजिटल के द्वारा विद्यार्थियों को, छात्रों को सिखा पाएंगे? इसीलिए, लेकिन ये आज का एक तात्कालिक रूप में, विकल्प के रूप में एक खड़ा है। इसीलिए हमें इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। इसीलिए जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पेन ड्राइव के द्वारा प्रभावी कंटेंट निर्माण करते हुए, डिजिटल कंटेंट, इफेक्टिव डिजिटल कंटेंट को निर्माण करते हुए, पेन ड्राइव के द्वारा पहुंचाते हुए, जो विद्यार्थी कनेक्टिविटी से वंचित हैं, ऐसे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठाएं और वो वंचित न रह जाए, इसका ध्यान हमको देना पड़ेगा। अवसर को उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, भारतीय शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का विकास किस प्रकार से होना चाहिए, इसको देखते हुए हमको आगे बढ़ना है। आप सभी दिव्यांश जी प्रारंभ में बोलते समय इसका अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी और चुनौतियों के बारे में भी विषय उन्होंने रखा है। इसीलिए मुझे लगता है इस चुनौती को हम स्वीकार करें और जड़ों के ओर हम चल पड़ना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने में शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, ऐसे 1000 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आईईएस भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ऐसा मैंने सुना हूं। उस आईईएस यूनिवर्सिटी का दर्शन के लिए मैं आ जाऊंगा जरूर। ऐसे 1000 यूनिवर्सिटियां हैं और 40,000 महाविद्यालय हैं। मैं आपसे भी विनती कर रहा हूं, आईईएस यूनिवर्सिटी में जितने भी विद्यार्थियां हैं, ऐसे 10-10 विद्यार्थियों का एक हमने यदि गठ बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और उस समूह के लिए एक शिक्षक ऐसे फैसिलिटेटर के रूप में देते हैं, तो वो एक गोद में ले ले, गांव में जाए, वहां रहे और अध्ययन करे और सर्वेक्षण करे, अनुसंधान करें और में हम अग्रसर बन जाएं। ऐसे आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने में एक एक छात्र, एक एक अध्यापक छोड़ देना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर शिक्षा का प्रभाव बहुत गहरा है। शिक्षा क्षेत्र में यदि हम परिवर्तन लाते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए शिक्षा क्षेत्र यानी बुनियादी क्षेत्र है। हर एक व्यक्ति शिक्षा से, यदि वो संस्था चालक के रूप में या शिक्षक के रूप में, पालक के रूप में या विद्यार्थी के रूप में, किसी एक प्रकार से हर एक व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए शिक्षा सब के साथ संबंधित विषय है। इसीलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्र जीवन में। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत, फिर से भारत विश्व गुरु बनना है
तो हमें शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन करके हमको दिखाना पड़ेगा. वी हैव टू रिबूट द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय आवर बुद्धिमत्ता, बाय आवर इंटेलेक्ट. So I request, my earnest request is to implement the Bharatiya education in all these institutions, and we have to move towards the villages to bring about the changes, to make the villages self-reliant, to make Bharat self-reliant, आत्मनिर्भर भारत. तब ही भारत विश्वगुरु बन सकता है. इतना कह के मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं. मैं प्रश्न पूछने के लिए भी आह्वानित करता हूं. सभी को नमस्कार. Thank you, sir, for an extremely profound and deep session. You truly have added a new dimension of meaning to the word education and educationist. Now, it's my pleasure and honor to present a brief profile of our second renowned guest speaker for today's session, Professor Dr. Rajiv Kumar sir. Professor Dr. Rajiv Kumar sir did his ME in Computer Technology and Application from Delhi College of Engineering, Delhi, and PhD from IIT Delhi. After completing PhD, he joined DCR University of Science and Technology, Haryana, in the year 1990. His areas of research and interest are mathematical computing, software engineering, and image processing. He has published a number of research papers in national and international journals and has presented papers in India and abroad. He has visited several universities in USA, Canada, China, and Malaysia. Welcome to IES, sir. Now over to you, Professor Dr. Rajiv Kumar sir, to commence the session, please. Sir. सभी को नमस्कार. आदरणीय शंकरानंद जी को भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम, नमस्कार. सबसे पहले मैं आईएएस यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आदरणीय शंकरानंद जी के साथ इस माध्यम से यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब. आदरणीय वाइस चांसलर साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया जिसमें माननीय शंकरानंद जी उपस्थित हैं और मुझे उनके विचार और उनके एजुकेशन और पोस्ट कोविड के बारे में कैसी एजुकेशन होगी उनके बारे में उनके विचार जानने का मौका मिला. मैं आपका सबका बहुत आभारी हूँ. मैं आपके सामने एआईसीटी में पोस्ट कोविड में एआईसीटी क्या कर रही है, क्या सोचती है और कैसा स्वरूप जिसमें भारतीयता एजुकेशन के साथ साथ जुड़ी रहे और इस जो कोविड जो सिचुएशन चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो भी रही है. हम अपने जो भारतीय परंपरा रही है एजुकेशन की उसको कहीं इस समस्या के साथ साथ उसको कहीं पीछे छोड़ते ना चले जाएं, ये ध्यान के रखते रहे हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको इस दोनों चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं. इस पर मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी कोई चुनौती किसी परिवार या किसी देश पर आती है तो उसके साथ वो समाधान और संभावनाएं भी लेकर आती है. तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती विश्व को मिली, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा. और इस चुनौती के साथ हमारी शिक्षा प्रणाली में भी एकदम ठहराव शुरू में जब ये चुनौती जब लॉकडाउन हुआ तो एक ठहराव सा आ गया. लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ हमारे शिक्षकों का कि उसने इस ठहराव को बहुत लंबे समय तक नहीं रहने दिया और उसने तकनीक का उपयोग करते हुए इस शिक्षा तंत्र को बड़े आसानी से, बड़े सहज भाव से, बड़ी परेशानियों के बावजूद भी वो उसको आगे लेके चले. मैं वास्तव में अपनी शिक्षा संस्थाओं और अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को बिना किसी ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग के अपनाया. शायद कुछ शिक्षकों ने तो पहली बार ही वीडियो का विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए पहली बार वीडियो भी बनाए,
अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी किए, बच्चों तक पहुंचाए, लेकिन बच्चों तक उन्होंने शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, वो उसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। पोस्ट कोविड AICT के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने पोस्ट कोविड में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हमने ऑफिस में आके लोगों की समस्याओं का समाधान या देश में शिक्षा को किस तरीके या कॉलेज को किस तरीके से अप्रूवल दें, इस पे हम लोगों ने काम ना किया हो। हमने कोविड में अपने ऑफिस को सुचारू रूप से चालू रखा। हमारे शिक्षकगण जिस तरीके से अपने घर से या अपने किसी भी स्थान से बच्चों को ट्रेनिंग देते रहे, बच्चों को शिक्षा का सिखाते रहे, हम AICT में ऑफिस में आकर ही देश में कि हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को परेशानी ना हो, उसका समाधान करने के लिए अपनी सरकार के साथ काम करने के लिए लगातार हम अपने ऑफिस में उपलब्ध रहे। हमने इस शिक्षा के तकनीकी शिक्षा के में बिल्कुल भी किसी तरीके की परेशानी, अप्रूवल्स, हमारी सारी अप्रूवल्स जिस तरीके से होती हैं उस तरीके से हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। और जो जिस चीज का सपना हमारे साथ था कि अब अपने जैसे कॉलेजेस में विजिट्स होते हैं अप्रूवल देने से पहले, उस विजिट को हम खत्म करना चाहते थे, हम उन विजिट्स को ऑनलाइन करना चाहते थे। वो सब कुछ काम हम इस कोविड टाइम में कर पाए। इस समस्या ने हमें वो एक रास्ता दिखाया और हम उसको इस काम से कर पाए। ये हम पिछले 3 साल से करने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ परेशानी आ जाती थी, लेकिन इस समस्या ने हमें एक ये संभावना दी और हम इसको स्वीकार करते हुए इसको लागू कर पाए। जहां तक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में AICT के द्वारा किए गए कार्यों का मैं आपके सामने अभी माननीय बता रहे थे कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से गांव में कनेक्ट करना है। सर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमने AICT इंटर्नशिप पॉलिसी बनाई है। उस इंटर्नशिप पॉलिसी में हमने हर बच्चे को निकट के गांव से, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करा है कि वो किस गांव में जा रहा है, हम वो गांव में जाके रुक रहा है और गांव की समस्याओं को देख रहा है। हमने उससे अपेक्षा नहीं की है कि फर्स्ट ईयर का छात्र या सेकंड ईयर का छात्र वो समस्या का समाधान देगा। हमने केवल ये कोशिश की है कि वो जाके समस्या को देखे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करे, कि अगर वो समस्या को देखेगा और समस्या को समझेगा तो समाधान वो अपने आप निकालेगा। यह हमारी सोच थी। हमने उसको गांव से जोड़ने की कोशिश की है और ये हमारी इंटर्नशिप पॉलिसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये वो काम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में करेगा, जिसमें वो किसी अपने शिक्षक के साथ नियर के विलेजेस में जाएगा और वहां पर जाकर समस्याओं को देखेगा, वहां के विलेजर से मिलेगा, बात करेगा और एक प्लान, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा वहां का। जैसा कि आदरणीय शंकरानंद जी कह रहे थे कि बच्चों को विलेज से जोड़ना है, तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमने बच्चे को विलेज से जोड़ने का प्रयास किया है। विलेज से जोड़ने के बाद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हमने उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया, क्योंकि हमें हमेशा एक ये शिकायत इंडस्ट्री से मिलती थी कि जो हमारा बच्चा ग्रेजुएट है उसके अंदर वो इंडस्ट्री के लायक नहीं है। इंडस्ट्री इवन उसके 95% या 90% शिक्षा के क्षेत्र में उसने अपनी डिग्री में अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री कहती है कि बच्चा हमारे काम का नहीं है। हमने इस चीज को पहचाना, हमने इंडस्ट्री को साथ बैठाया, करिकुलम को रिवाइज किया, हमने इंडस्ट्री के माध्यम से, इंडस्ट्री के लोगों के सहयोग से करिकुलम बनाया और करिकुलम को लागू किया। देश के हर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में AICT के द्वारा बनाया गया करिकुलम लागू हो गया है सर। और उस करिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि उसमें हमने नंबर ऑफ क्रेडिट्स को कम किया। नंबर ऑफ क्रेडिट्स को कम करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उस पर शिक्षा का बोझ कम किया है, हमने उसको अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर छात्र के अंदर का जो इंजीनियर है उसको निकालने की कोशिश की है। और उसके माध्यम से हमने बच्चे को कैसे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर जैसे इंटर्नशिप है या इंडक्शन प्रोग्राम है, उसके माध्यम से वो कैसे अपने को शिक्षा में अधिक से अधिक कार्य संगत बना सकता है, इसको बनाने की हमने कोशिश की है। जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है 3 दिन का, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का जो प्रोग्राम है, कंपलसरी पेपर है, उसमें बच्चे को अपने परिवार को, अपने वातावरण, एनवायरनमेंट को और समाज को जानने का उसको मौका मिलता है। क्योंकि आज की शिक्षा की प्रणाली में ये देखा गया है कि बच्चा 8वीं और 9वीं से 8वीं क्लास से और 9th क्लास से
कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देता है। वो अपने परिवार से कट जाता है, अपने समाज से कट जाता है, उसमें देश में हो रही विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न घटनाओं की कोई उसको जानकारी नहीं होती है। वो केवल अपने माँ बाप तक सीमित रहता है या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाता है। और ऐसा बच्चा हम नहीं चाहते कि वो इंजीनियरिंग में, जो बच्चा केवल अपने तक सीमित हो और अपने माँ बाप तक सीमित हो, जिसको समाज के बारे में, देश के बारे में पता ना हो, देश की समस्याओं के बारे में पता हो, वो हमारे समाज की समस्याओं का इंजीनियर बनने के बाद समाधान नहीं दे सकता है। हमने उसको समाज से जोड़ने की कोशिश की है। उसके लिए 3 हफ्ते का ये इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें बच्चा सुबह 6:30 बजे उठता है। 6:30 बजे उठने के बाद वो योग और स्पोर्ट्स जिसमें भी उसकी रुचि हो, और उसके बाद वो एक टीचर की मेंटरशिप में उसका इंटरेक्शन सेक्शन होता है। उसमें कोई लेक्चरिंग नहीं है, प्रोग्राम में इंटरेक्शन करता है। उस इंटरेक्शन के माध्यम से वो बच्चा खुलता है, अपने दिल की बात वो अपने मेंटर से शेयर करता है, अपने पीयर ग्रुप से शेयर करता है, और उस खुलने के बाद वो उसका समाधान उसको उसी मेंटरशिप सेशन में मिल जाता है। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं IIT BHU जाके इस प्रोग्राम को अपने आप मैंने सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, रात के शाम तक अटेंड किया। और मैंने एक मेंटरिंग सेशन में ये देखा कि एक बच्चा सुबह जैसे कि इंटरेक्शन चल रहा था, वो मेंटर के साथ खुला और कहने के बाद उसने कहा कि मेरे माता पिता, वो IIT BHU में उसका एडमिशन हुआ था मैकेनिकल में, उसने कहा कि मेरे माता पिता मेरे से अपेक्षा करते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, कि मुझे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलेगी। लेकिन जब JEE का रिजल्ट आया तो मेरी रैंक अच्छी नहीं थी, और उस रैंक में मुझे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलने की कोई संभावना नहीं थी। तो हालात यहाँ तक पहुंच गए कि मेरे माता पिता ने मुझसे 1 महीने बाद नहीं की, और मैं he was confined to a single room just watching TV and working on his laptop। उस बच्चे की मनोस्थिति जो 18 या 19 साल का है, और उसके माँ बाप उससे इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी रैंक JEE में अच्छी नहीं आई है, तो और वो बच्चा कन्फाइंड है। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैंने अपने आप एक निर्णय लिया कि मैं IIT BHU मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करूंगा। कहता है कि मुझे यहाँ आने से पहले ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। एक भेड़ चाल की तरीके से सब उसी इंस्टीट्यूट के पीछे, उसी ब्रांच के पीछे पड़े हुए थे, और मैं भी उसी तरीके से पड़ा हुआ था। तो मेरा कहना इस वाक्य को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर वो बच्चा इंडक्शन प्रोग्राम ना हुआ होता IIT BHU में उस टाइम, तो वो बच्चा डेफिनेटली डिप्रेशन में आ गया होता, और डिप्रेशन का अंजाम हम अपनी युवा पीढ़ी पर देखते हैं, रोजाना अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, बहुत बुरा होता है। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम को हमारे लाने की जो मंशा थी, भारत सरकार की जो मंशा थी, यही थी कि भारत हमारी भारतीयता को जाने, बच्चा समझे, खेले, और अच्छे जो उस 3 हफ्ते का प्रोग्राम है उसको बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड है। वो नियर बाई प्लेसेस को विजिट करता है, रिनोन्ड लोग हैं हमारे, उनके लेक्चर्स को सुनता है, टीवी पे उनको दिखाया जाता है, ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जिसमें हमारे कल्चर को दिखाया गया है। ये सब चीज 3 हफ्ते के प्रोग्राम का पार्ट है। ऐसा ही हमने एक प्रयोग एग्जामिनेशन में किया। मैं माननीय शंकरानंद जी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि सर, हमने जितने भी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं या बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, हमने सबके क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया, क्योंकि इंडस्ट्री कहती है कि जो बच्चा 95% स्कोर करता है वो इंडस्ट्री के लायक नहीं है। तो इसका मतलब बच्चा तो अच्छा है, हमारी इवैल्यूएशन प्रोसेस में कोई गलती है। हमने इस चीज को पहचाना और हमने सारे क्वेश्चन पेपर्स को, बहुत सी यूनिवर्सिटीज के, टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के पेपर को एनालाइज किया। हमने ये पाया कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस है, वो मगिंग टाइप पे है, क्रैमिंग, याद करने की रिमेम्बरेंस पे ज्यादा है। 60-70 से 75% क्वेश्चंस जो है रिमेम्बरेंस में, जिस बच्चे की रिमेम्बर की क्षमता ज्यादा है कर सकता है। कमेटी बनाई, कमेटी ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी बनाई, वो एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे पॉलिसी प्रेरित है, और उसमें रिमेम्बरेंस को मिनिमम वेटेज दिया गया है। और अब इस टाइप के पेपर्स को बनाना हमारे यहाँ के शिक्षकों को एकदम
नहीं बना सकते, आसान नहीं है। उसको बनाने के लिए शिक्षकों को ट्रेंड करने की आवश्यकता थी। हमने शिक्षकों को ट्रेंड करना प्रारंभ किया और उसके लिए, और अभी तक हम करीबन 15,000 शिक्षकों को देश में ट्रेंड कर पाए, क्योंकि शिक्षकों को ट्रेंड करना इतना 3 दिन का प्रोग्राम होता है, इसको ट्रेंड करना इतना आसान नहीं है। वर्कशॉप्स होती हैं, हैंड्स ऑन पार्ट्स कराया जाता है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, किस तरीके से इवेल्युएट करना है, लेकिन इस प्रयास में हम कार्यरत हैं और लगातार हम टीचर्स को ट्रेनिंग करके वर्कशॉप्स करा रहे हैं। हमारी वर्कशॉप जारी हैं। अब कोविड के प्रॉब्लम में है, इसको हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही इंडक्शन प्रोग्राम, ये जो 3 हफ्ते का मैं बात कर रहा था, ये बड़ा साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसको भी ट्रेन टीचर ही इसको 3 हफ्ते का प्रोग्राम चला सकता है। तो इसको प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रावधान किया। अब तक हम करीबन 25,000 टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं और आज भी एक प्रोग्राम खत्म हुआ है, डेली एक प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन माध्यम से। हमारी जो नेशनल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से हम ये प्रोग्राम करते हैं। जगह ये प्रोग्राम अब तक करीबन हम 25,000 टीचर्स को इस प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेन कर चुके हैं। शुरू में हम ये प्रोग्राम 5 दिन का है, फिर सेकंड स्टेज में ये प्रोग्राम 8 दिन का है, लेकिन ये प्रोग्राम 8 दिन का प्रोग्राम हम ऑफलाइन करेंगे, कॉन्टैक्ट मोड में करेंगे। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी हम 8 दिन का प्रोग्राम करेंगे, अभी स्टार्ट कर देंगे। तो ये इनिशिएटिव हमने AICTE की तरफ से लिया। करिकुलम रिवीजन के बारे में मैंने बताया। एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है कॉलेज में गुणवत्ता लाने के लिए एक्रेडिटेशन का है। एक्रेडिटेशन, बहुत से बच्चे जो हमारे यहाँ से डिग्री करके विदेशों में जाते हैं, उनको बीच में अभी कुवैत में बहुत सारे बच्चों को परमिट रिन्यू कराने में, जो देश के विभिन्न भागों से जिन्होंने इंजीनियरिंग प्राप्त की थी, उनको अपना परमिट रिन्यू कराने के लिए वहाँ की सरकार ने मना कर दिया। कुवैत में ये सबसे ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और कुवैत में हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कार्यरत हैं, उनका कुवैत सरकार ने परमिट रिन्यू करने के लिए मना कर दिया कि आपकी डिग्री एक भारत में जो इंस्टीट्यूट से आपने जिससे की है उसका एक्रेडिटेशन नहीं है। तो हमने, भारत सरकार ने उस पर काफी मेहनत की और कुछ टाइम तक हम उसको उस प्रॉब्लम को उस टाइम उसको रिजॉल्व कराने में हम लोग सक्षम हो पाए। लेकिन आगे के लिए हमें देखना है कि हमारे इंजीनियर्स को इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो एक्रेडिटेशन जिसमें क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उसमें हम कॉलेजेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने मार्गदर्शक जो सीनियर टीचर्स हैं, संस्थानों के रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनको किया है और वहाँ को फैसिलिटेशन। एक मैं आपके साथ एक नया इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने AICTE के ऊपर अभी दिया है, वो है इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। हमारा भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे आदरणीय शंकरनंद जी अभी बता रहे थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन, वो दोनों चीजों में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को, चाहे वो मेडिसिन के बारे में हो, चाहे आर्टिजियन के बारे में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, हमारा हमेशा हम लोग विश्व में विश्व गुरु को लाए, लेकिन हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन एक विश्व को बताने के लिए एक प्रॉपर तरीके से नहीं किया। और भारत हमारे संचालन समिति में एक मेंबर हैं और अहम भूमिका इसमें निभाई है। अब हमने देश में एक जितने भी लोग ट्रेडिशनल नॉलेज में, जिनका इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में जिनका ज्ञान है, उन लोगों को एक मंच पे हम लोग लेके आ रहे हैं और उस मंच पर आने के बाद उनके अंदर जो ज्ञान, उनके पास नॉलेज है जो है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करेंगे। जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हम विश्व को एक अपना भारतीयता के बारे में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताने में सक्षम होंगे। ये प्रयास अभी हमने शुरू किया है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो AICTE से हमने एक गूगल फॉर्म सब जगह सर्कुलेट भी किया था। उन लोगों से हमने अपेक्षा की थी कि वो आए और हमें अपने नॉलेज सिस्टम को शेयर करें।
लेकिन फिर भी अगर कोई लोग इससे नहीं जुड़ पाए हैं तो वो हम लोगों को लिख सकते हैं, हम उनको इस माध्यम से जोड़ेंगे, उनके पास प्रेजेंटेशन करेंगे। ये हमारा एक इंस्टीट्यूट इस कोविड प्रॉब्लम को बिना गुरु शिष्य परंपरा को पीछे छोड़े हुए किस तरीके इनोवेटिव वे से हम लोग इसको आगे ले जाते हैं, ये स्टूडेंट्स के, ये हर इंस्टीट्यूट के ऊपर, हर शिक्षक के ऊपर एक जानकारी है, जिम्मेदारी है, रहेगी। और AICTE और भारत सरकार इसमें आपको सहयोग प्रदान करेगी। जो भी आपके सुझाव होंगे उनको हम एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखेंगे और उस पर अगर कुछ आगे ले जाने के लिए उसमें ऐसा लगेगा कि उसको आगे ले जाया जा सकता है तो हम उसको आगे ले जाए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने को रोकता हूँ, विराम देता हूँ और आप इससे धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ एक बार बोलने का मौका दिया। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, sir, for an extremely enlightening session and for sharing vital information along with your profound and vast experience. Now, over to Shri Devang Singh, sir, CEO, IS University, for moderating the question and answer session. Sir. सबसे पहले मैं आदरणीय शंकर आनंद जी का धन्यवाद करूंगा कि बड़े व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हमारे इस वेबिनार में आने के लिए समय निकाला। थैंक यू सर। साथ ही मैं राजीव जी का धन्यवाद करता हूं जो हमारे सेकंड गेस्ट स्पीकर थे आज के, और उनके साथ अन्य ही गेस्ट जिनने आज हमें ज्वाइन करा, श्री देवेंद्र जी पनवार, डॉक्टर अमित दत्ता, डॉक्टर संदीप कुलश्रेष्ठ, श्री संजय पटवा और डॉक्टर आशीष डोंगरे सर। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद आपने आज का सेशन अटेंड करा। मेरा शंकर आनंद जी से आज पहला सवाल ये है कि सर आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो अकॉर्डिंग टू यू व्हिच टीचिंग मेथड वाज मोस्ट इफेक्टिव? Like in the earlier centuries, we used to have gurukuls in India. It was something different which the world looked up to. So which teaching method do you prefer? शंकर आनंद जी। हाँ, अभी अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालने के लिए शिक्षक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए। इसका जो मेथडोलॉजी है, सिखाना नहीं है, फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके आधार पर वो स्वाध्याय के माध्यम से वो सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमने गुरुकुलों में और कुछ विद्यालयों में ऐसे हमने मेथडोलॉजी हमने तैयार की है। उस मेथडोलॉजी में 12 हमने पद्धतियां बनाई हैं। उसको अभ्यास वर्ग के द्वारा हम प्रबोधन करते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। उसमें पर्यटन विभाग है और समाप्रमिधि है। ज्ञान को स्वीकार करते समय पहले जैसे बर्तन में दूध डालने से पहले बर्तन को साफ करना पड़ता है, ऐसे ज्ञान प्राप्ति से पहले ये मस्तक शुद्धि करना पड़ता है। यानी इसके लिए भाव शुद्धि भी होनी चाहिए, बुद्धि शुद्धि भी होनी चाहिए। ऐसे इनके द्वारा विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको योग्य बनाना, यही महत्वपूर्ण बात है। मैंने जो बताया श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, ऐसे प्रतिभा, धृति, धि, इसके आधार पर हमने उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसका हमने विकसित किया है। उसके
इसका अभ्यास वर्ग भी हम लेना शुरू किया है। शिक्षा प्रविधि के माध्यम से शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए we have developed education quality improvement program through which we bring change in the thoughts of teachers in और उनका जो पढ़ाने का यानी एज ए फैसिलिटेटर वो कैसे काम करे, इसके बारे में भी उस प्रशिक्षण में हम विचार रखते हैं और एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहां हो जाता है। शंकर आनंद जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे प्राइमरी और नर्सरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अडेप्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन टीचिंग से, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा नया है। हाँ, इसीलिए बच्चों को ऐसे अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा, अधिप्रज्ञा, अधिप्रतिभा, ऐसे 4 प्रकार आयु के अनुसार हमने विभाजित की है। शिक्षा है वो ऑनलाइन कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां अधिशील यानी कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग में ऑनलाइन से कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो एक्चुअल लर्निंग से ही हो सकता है। प्राण शक्ति की प्रवाहित हो जाना ये वहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस परिस्थिति में हमको ऐसा करना है, गांव में वहां शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ज्यादा लेना, कम संख्या में विद्यार्थियों को अलग अलग जगह पे बुला लेना और हुए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। विद्यार्थी कितने हैं, बैठने के लिए जगह कितना है, ये सोचकर वहां के स्थानीय शिक्षक नहीं है ऐसे लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लेते हुए हमको इसका प्लानिंग करना पड़ेगा। हमने जब उन उच्च शिक्षा में मंत्री जो हमको बुलाकर इसके बारे में सुझाव मांगा था, वहां हमने दिया है कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम प्लान कर सकते हैं, इसका एक नमूना हमने दिया है। देश भर में इसको व्यापक रूप से हमको लेना पड़ेगा। इसीलिए जो अभी शिक्षित हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को रिटायर्ड हो या नए हो, इनको सिलेक्ट करके संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अधिशील शिक्षा में यानी 1st to 7th तक ऑनलाइन शिक्षा करना, ऑनलाइन पढ़ाना, ये बहुत बुरा असर बच्चों के जीवन में पड़ जाता है। वो उसमें एक्वेंट भी नहीं है और उसके कारण, ऑनलाइन शिक्षा के कारण उस आयु में हम जो उनमें प्रवाहित करना चाहिए प्राण शक्ति, एक्चुअल लर्निंग से जो होता है गुरु शिष्य संबंध के कारण, फेस टू फेस लर्निंग के द्वारा क्या होता है वो ऑनलाइन में कतई संभव नहीं है। इसीलिए वो ऑनलाइन हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन और प्रौढ़शाला में भी, हाई स्कूल में भी हम पढ़ाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन इस प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी में ऑनलाइन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके कारण उनका भविष्य के ऊपर बुरा असर पड़ जाता है, विकास नहीं होता साइंटिफिकली। इसीलिए इसके लिए हमको इस चुनौती को स्वीकार करके सभी सोचकर इसका एक विकल्प यानी बैठने का जगह फिजिकल डिस्टेंस के माध्यम से, और दूसरा चुनौती है शिक्षकों की संख्या का तुलना में संख्या अभी कम है, उसको ठीक कैसे करें, इस चुनौती को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। धन्यवाद शंकर आनंद जी, आपने इस सवाल का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया और हमें यकीन दिलाया कि छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए और उनकी शिक्षा में कोई भी कमी नहीं रहे और ऑनलाइन एजुकेशन जहां तक हो सके हम अवॉइड करें। अब मैं चाहूंगा कि डोंगरे जी या फिर प्रोफेसर रोशन अगर कोई सवाल करना चाहें तो शंकर आनंद जी से कर सकते हैं।
नो। ये बस ये देख लें डोंगरे सर अनम्यूट हैं कि नहीं। नहीं, मैं तो अनम्यूट हूँ। जी सर, आप पूछिए ना सर। हाँ। आप ज्यादा बेहतर। आदरणीय शंकरानंद जी से मैं पूछना चाहूंगा एक बहुत छोटा सा सवाल कि जैसे हम सब जानते हैं कि गुरुकुल प्रणाली हमारे लिए उपयुक्त है, उपयुक्त थी, उपयुक्त है और आगे भी उपयुक्त रहेगी। तो इस दिशा में हम समाज के पोषित शिक्षा के उद्देश्य से या गवर्नमेंट की मदद से ऐसा क्या करें कि ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुरुकुलों की स्थापना हो, क्योंकि जब भी गुरुकुल को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। भोपाल में भी हम लोगों ने एक गुरुकुल स्थापित किया था, लेकिन पेरेंट्स ने पहले तो लेके आए अपने बच्चों को, लेकिन फिर उनको कंफ्यूजन हो गया, भाई फॉर्मल एजुकेशन से बच्चा दूर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट फ्लॉप। तो मेरा ये अनुरोध है कि कोई ऐसी एडवाइस सर दें या अपन सब मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया इजाद करें उसमें AICT, MHRD, भारतीय शिक्षण मंडल, ये सारी यूनिवर्सिटी सब इन्वॉल्व हों और ऐसा कुछ करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपन गुरुकुलों को स्थापित कर सकें और उनको जनता के बीच में पॉपुलराइज भी कर सकें। सर, मैं यहाँ बैठे हुए IAS यूनिवर्सिटी के सभी संस्था चालक जो हैं, CEO को लेकर चांसलर जी हैं और सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, एक रोल मॉडल के रूप में भोपाल में जो भी भोपाल में किया जाता है वो देश भर में उसका असर बहुत गहरा पड़ता है, बहुत अच्छा असर हो जाता है। वो भौगोलिक रूप से भी और उस भूमि के लक्षण के कारण भी भोपाल का महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है एक रोल मॉडल के रूप में एक गुरुकुल चलाया जाए। श्रेष्ठ आचार्य यदि श्रेष्ठ हमको मिलते हैं तब शिक्षा अच्छी ढंग से शुरू हो सकता है। अभी स्कूल एजुकेशन क्या हो गया है, वो रीडिंग, राइटिंग, रिगिंग, रैगिंग, अरिथमेटिक, इन पांचों वर्टेक्स में वो फंस गया है स्कूल एजुकेशन। इससे बाहर निकालना है उसको, उसके वो जॉयफुल एजुकेशन करने के लिए गुरुकुल शिक्षा एक अत्यंत प्रभावी है। वहां आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और अर्वाचीन प्राचीन शिक्षा भी, भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा भी वहां प्राप्त करते हैं। वहां मेथडोलॉजी बहुत सुंदर है, वहीं पे रहते हैं, इसीलिए सुबह से लेने से बहुत सारे शिक्षा प्राप्त हो जाती है, जीवन जीने की कला वो सीख जाते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग भी सीख जाते हैं। वो मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पहले उच्चारण में शुद्धि लाना पड़ता है। वो जैसे उच्चारण शुद्धि हो जाता है, ग्रहण करने के लिए बच्चों को योग्य बनाना ही प्रथम कर्तव्य है। ऐसा यदि हम करते हैं तो अभी जो चला रहे हैं हम भारतीय शिक्षण मंडल के मार्गदर्शन से जितने भी गुरुकुल देश भर में चल रहे हैं, उनमें से जो बच्चे निर्माण हो रहे हैं वो दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं गुरुकुलों का। मैं उदाहरण बताता हूं, 21-22 साल में अनुसंधान पूरा करके बिना सर्टिफिकेट हाथ में रखते हुए, सर्टिफिकेट के बिना ही यूरोप के कई सारे यूनिवर्सिटियों में अपने गुरुकुल के बच्चे पढ़ाना जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं। उनका डिमांड इतना है, ये अभी हो रहा है। इसीलिए ऐसा एक मॉडल गुरुकुल आप भोपाल में शुरू करें। डोंगरे जी बताएं कि वो विफल हुआ, विफल इसीलिए होता है, दो प्रमुख बात यह है कि एक श्रेष्ठ आचार्य चाहिए, उनका कथनीय और करनी दोनों के बीच अंतर न रहे, ऐसे एक अच्छा आचार्य चाहिए। ऐसे आचार्यों का निर्माण का काम हम निरंतर रूप से कर ही रहे हैं, ऐसा एक आचार्य चाहिए। दूसरा, कंटेंट क्या है ये भी चाहिए।
कंटेंट आधुनिक शिक्षा का भी और भारतीय ज्ञान परंपरा का भी, दोनों का कंटेंट हमारे पास तैयार है। वो उस कंटेंट को यदि हम प्रभावी ढंग से हम व्यवहार में उतारते हैं तो लोग पागल होकर अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए स्पर्धा के रूप में चल पड़ते हैं। ये दृश्य अभी दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, उसको बहुत अध्ययन, गहरा अध्ययन के द्वारा ही शुरू करना बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी निःशुल्क है, शुल्क लेना नहीं है। इसके कारण वहां के जो पालक हैं और समाज, वो ही सभी का, आचार्यों का और बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो भी खर्चा उठाना पड़ता है वो खर्चा समाज के द्वारा ही हम ले रहे हैं। पूर्ण निःशुल्क शिक्षा है, समाज पोषित है और सरकार के जो ग्रिप है उस ग्रिप से बाहर है। ये भी होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर शासन नियंत्रित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा ये समाज पोषित रहना चाहिए और शिक्षाविदों के हाथ में शिक्षा रहनी चाहिए। ये उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम निर्धारित क्षेत्र में हम प्रयोग करके सफल हो रहे हैं। उसको व्यापक करने का जरूरत अभी है। वो व्यापक करने के लिए आप जैसे यूनिवर्सिटी यदि साथ में खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा ही हम शिक्षा में ऐसे रोल मॉडल खड़ा कर सकते हैं। सरकार का भी हम सहयोग लेते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं हमारे गेस्ट डॉक्टर अमित दत्ता या फिर डॉक्टर संजय से पूछना चाहूंगा, अगर उनके पास कोई सवाल हो तो वो शंकरानंद जी से पूछ सकते हैं। सर, मैं शंकरानंद जी, नमस्कार। मैं बीएस यादव। मेरा एक आपसे सवाल था कि जिस हिसाब से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ग्लोबली वो देशों ने ज्यादा उन्नति की जिन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को अपनाया। तो आज के रुक गया, आवाज रुक गई, आप आवाज रुक गई थी, फिर से पूछिए। मेरा सर ये प्रश्न है कि विश्व में ये देखा गया कि जो अधिकतर ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और अपनी भाषा को अपना के बहुत बड़ी प्रगति की। अगर हम लोग अपने देश के मामले में देखें कि चीन के बाद हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जितना जरूरी हो हम दूसरी भाषाओं को अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा कल्चर है, और अभी राजीव कुमार जी ने भी ये बात की थी कि बहुत बच्चे स्ट्रेस में हैं और हम लोग देख भी रहे हैं, तो किस तरीके से हम जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो किस तरह से इसकी एजुकेशन की ब्लेंडिंग करें कि बच्चों में शुरू से ऐसी चीजें आए कि वो स्वावलंबी बने, उसके साथ साथ जो तनाव वाली बातें हैं वो कम। तनाव कम करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी होने के कारण आपके पास स्वायत्तता है। मैंने बताया, आज ऐसे विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए अपने देश में 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक है अंतरीक्षण यानी सेल्फ असेसमेंट, दूसरा है परीक्षण। मेरा म्यूट ही था, अभी सुनाई दे रहा है ना? जी सर। हाँ, अभी कहाँ तक सुनाई दिया, कब म्यूट हो गया ये मालूम नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। विद्यार्थियों का आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा को जॉयफुल एजुकेशन बनाना है तो परीक्षा पद्धति जो वर्तमान में है उसको पूरा के पूरा परिवर्तन करने के लिए प्रयास होना चाहिए। उसके लिए यदि उसको सिस्टम में यदि नहीं ला सकते हैं वर्तमान में तुरंत, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रयोग में ऐसे भारतीय पद्धति में 2 प्रकार है। एक है अंतरीक्षण यानी सेल्फ, व्यक्ति करना चाहिए अंतरीक्षण को, सेल्फ असेसमेंट को बाहर के व्यक्ति नहीं कर सकते।
एक विद्यार्थी का अंतरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण ऐसा वो शब्द उपयोग भी कर सकते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट है। उसको यदि माता पिता करना चाहिए, ये स्वयं खुद करना चाहिए। गुरु, माता पिता, ये चारों लोग स्वयं को लेकर 4 लोग अंतरीक्षण कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। उस सेल्फ असेसमेंट का बहुत सारे बिंदु है। और परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण यानी 35 मार्क्स लेने से पास हो जाएंगे, इसको पहले खत्म करना पड़ेगा। वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सब विषय पहले पन्ने से लेकर अंत तक सब कुछ 100 अंक का में जो भी है उस सभी ज्ञान को वो जानना चाहिए, इसका परीक्षण होना चाहिए। ऐसे विद्या को हमने काल निरपेक्ष बोलते हैं। टाइम टेबल नहीं रहना चाहिए, 45 मिनट का एक सेशन, ऐसा नहीं रहना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटियों में इसका लागू भी किए हैं उन्होंने। एक दिन एक अध्यापक को छोड़ देते हैं, वो बहुत खुशी से जितना समय चाहिए उतना समय बच्चों के साथ बैठ के वो कॉन्सेप्ट, जब बच्चों भी प्रेम से बैठते हैं, शिक्षक भी प्रेम से बैठते हैं, वो इतना इनफॉर्मल हो जाता है। वो इनफॉर्मल होने के कारण ज्ञान ग्रहण सरल हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा प्रयोग यदि हम करना शुरू करेंगे तो विद्यार्थियों के जीवन में एक नया रोशन हम लाने में सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो परीक्षा पद्धति भी एक है, इसके कारण जॉयफुल एजुकेशन हम अपने संस्था में ला सकते हैं। जॉयफुल करना है, यही बहुत महत्वपूर्ण है।